member. First, I am Matyup Tamlung, hails from Anjao district, and I have started my sports journey in the year 2006, and I am 8 times state champion, 4 times Northeast champion, and 2 times national medalist. And on my right, Mr. Tagesa, hails from Lower Subansiri district, and he is 12 times state champion, 4 times Northeast champion, and 6 times national medalist, and he is an international player, and he has started his sports journey in the year 2003. And on my left, she is Niktar Ani, and she started her sports journey in 2003, and she is 2 times national medalist. And next to Niktar Ani, we have Runa Dada from East Kaming district, and he is also a national player, 2 times national medalist, and he has participated in South Asia Championship and World Cup. And to my right, Tana Suraj, he is a taekwondo player, and he has started his sports journey in 2007 from Sai Nahalagan, and he is 10 times state champion and 3 times national medalist. And next to Tana Suraj, we have Nikam Sonoliang from East Kaming district, and he is also a national player. So alright, this was the short introduction of team members. So let me come to the point. The purpose of being here for press brief is to express our grievances over the inordinate delay of sub-inspector recruitment under meritorious sport person quota, with notification number PHQ/PAR90/2013 dated Itanagar 29 June 2018. So this advertisement was advertised in the year 2018, and in this particular advertisement, any sport person who have represented Arunachal Pradesh were invited to filling up their application. So we, being a meritorious sport person, have also submitted our application form. So it is very sorry to state that it took more than 3 years just to bring this recruitment into process. 3 साल के बाद में जो है एडवर्टाइजमेंट डेट के बाद 3 साल के बाद में ये प्रोसेस आया. तो ऑन 26 August 2021 वी गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन जहाँ पे 97 जो है एप्लीकेंट्स जो इसके अगेंस्ट में अप्लाई किया था, जो सेलेक्टेड उसको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए पीटीसी बंदरदेवा में जो है ये अपीयर करने के लिए हम लोग को जो है नोटिफिकेशन मिला. एंड लेटर ऑन वी गेट अनदर नोटिफिकेशन ऑन 10 September 2021 wherein it was informed to all the candidates that the medal जो सर्टिफिकेट का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है that will be written by the recruitment board for SIT verification. तो during those days many जो cases of corruption practice in sport quota was coming up, तो SIT constitute किया था. And finally on 7 October 2021 we appear our physical standard test at PTC Bandardewa, and on the same day the merit scrutiny was also done by the recruitment board. And as per the earlier notification, हम लोग का जो ओरिजिनल मेरिट सर्टिफिकेट है उसको जो है बोर्ड ने जो है रिटेन कर लिया था. तो वी वर अश्योर्ड दैट कि रिज़ल्ट जो है ये SIT वेरिफिकेशन का बाद में जो है आउट होगा. तो हम लोग वेट कर रहे थे कि SIT का रिपोर्ट जो है आ जाने से रिज़ल्ट आएगा होगा. बट अनफॉर्चुनेटली द 4 months पास बाय, तो हम लोग को अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है. वेयरएज जो है इट वाज लर्न फ्रॉम द रिलायबल सोर्स, SIT had already submitted their report by the end of December 2021. December 2021 तक वो लोग ने जो है SIT का ये कर लिया था, लेकिन हम लोग का रिज़ल्ट जो है तब भी नहीं निकल रहा था. तो हम लोग बहुत चिंता हो गया
तो हम लोग ने पूछताछ किया कि अभी रिज़ल्ट क्यों ये इतना डिले हो रहा है, जबकि इट वाज ऑलरेडी रनिंग 4 years लेट। 4 years जो है हम लोग का ये हो रहा। इस बार जो है अगर हम लोग जो है इस बार जो है हम लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो फिर हमारा जो है और 1 साल ऐसे ही लॉस हो जाएगा बोल के हम लोग ने जो है ऑन 12 February हम लोग ने जो है वी हैड गॉन टू DGP ऑफिस एंड वी हैव सबमिटेड आवर फर्स्ट मेमोरेंडम फॉर एक्सपेडाइटिंग जो है अर्ली प्रोसीड्यूर बोल के हम लोग ने जो है तब वहाँ जाके हम लोग को पता चला कि देयर वाज ए स्मॉल इशू इन फाइनलाइजिंग द मेरिट लिस्ट बोल के हम लोग को बोला, फॉर विच द डिपार्टमेंट हैड रोट टू डायरेक्टर स्पोर्ट्स क्लैरिफिकेशन के लिए ना, तो वो लोग ने डायरेक्टर स्पोर्ट को लिखा बोला। तो इसके बाद फिर हम लोग आ गया और उसी समय में भी हम लोग को वी वर एश्योर कि जैसे ही डायरेक्टर स्पोर्ट की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तो साथ ही साथ जो है जो मेरिट रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा बोल के। तो हम लोग को सुनने में मिला है कि डायरेक्टर स्पोर्ट की तरफ से जो है 11 मार्च 2022 को जो है क्लैरिफिकेशन हो गया और डिपार्टमेंट में जो है वो लोग कागज़ दे दिया। तो उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग फिर गए नोटिस बोर्ड देखने, लेकिन टू अटर डिसमय इस वक्त भी जो है इस समय भी जो है रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ था। देन हम लोग ने जो है एक रिमाइंडर लेटर फिर जो है 17 मार्च 2022 को जो है फिर हम लोग DGP को जो है एक रिप्रेजेंटेशन डाला था। तो उसमें ये बोला गया था कि हम लोग उस समय फिर मिला था ये डडेन AIGP इराक बागरा सर को हम लोग मिला था। तो वहाँ पे जो है थोड़ा मार्च एंडिंग का बहुत फाइल पेंडिंग है, तो जैसे ही ये क्लियर होता है आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा बोल के हम लोग को बोला था। तो उसके बाद में कुछ दिन और बीत जाता है, फिर रिज़ल्ट नहीं निकलता है। तो हम लोग ने जो है ये मैटर को जो है होम को हम लोग अप्रेस करने के लिए हम लोग होम के पास गए। तो होम से हम लोग मिलने का मौका नहीं मिला। हम लोग वी वर इंस्ट्रक्टेड टू मीट OSD टू होम। तो उसने OSD सर से हम लोग मिला, तो OSD सर ने बोला ही हैज़ ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड बोल के डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इसको जल्दी जो है आप लोग का जो है हो जाएगा। और इसी बीच में जो है 123 जो सब इंस्पेक्टर का जो है रिक्रूटमेंट चल रहा था, तो उसका साथ में जो है आप लोग चिंता मत करो, आप लोग नेपाल में एक साथ में ट्रेनिंग करेगा बोल के हम लोग को बोला गया था। लेकिन मार्च चला गया, फिर भी जो है ये रिज़ल्ट आउट नहीं हो रहा था। तो रिज़ल्ट आउट नहीं हो रहा था, हम लोग ने फिर ये टीम का बिहाफ में मैंने फिर हमारे ऑनरेबल DCM सर को जो ये मैटर को अप्रेस किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट में अभी काम अभी जो है हो जाएगा बोल के ऐसे करके जो है अभी तक मैंने नाउ इस 11 मंथ्स हो गया जब से हम लोग का स्क्रूटिनी हो गया, तब से जो है हम लोग का रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो लास्ट टाइम जो है हम लोग का ये DGP सर कुछ हम लोग ने जो है 18 अगस्त को हम लोग ने मिला, तो वर्बली हम लोग को एश्योर किया कि अभी जो है आप लोग का जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है आप लोग का रिज़ल्ट निकल जाएगा बोला। उसके बाद में आप लोग ने शायद मीडिया में भी सुना होगा, फिर हम लोग का ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी 31 अगस्त को बोला था कि रिज़ल्ट हैज़ बीन फाइनलाइज। तो जैसे ही DGP जो है स्टेट में अरुणाचल में वापस आएंगे जो है डिक्लेयर हो जाएगा। तो हम लोग खुशी लग रहा था, मैंने इतना साल का चलो इतना साल तक हम लोग जो है वेट किया, एटलीस्ट अभी तो हो जाएगा। फिर हम लोग 8 तारीख को जो है PHQ जाता है, तो फिर वहाँ जाके पता चलता है कि डियर इज़ न्यू इशू, अभी फिर नया इशू आ गया। तो उसमें हम लोग को वो इशू में हम लोग OSD सर से मिला, तो वो बोल रहा है कि अभी जो है एक नया गाइडलाइन है, उसको जो है यहाँ पे जो है ये करना पड़ेगा। तो मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है कि आप हर बार जो है कोई ना कोई हर एक महीना जो है अलग अलग रूल जो है इसमें ऐड करते जाएगा, मॉडिफाई करते जाएगा, तो क्या ये रिक्रूटमेंट का जो पैरामीटर है वो क्या चेंज नहीं होगा क्या? हम लोग को जो 8 तारीख को जब हम लोग ने वहाँ पे जब जाके मिला, तो उसी समय में जो है एक 8 अक्टूबर जो है 2021 का जो है एक नया गाइडलाइन है बोला। उस हिसाब से जो है वहाँ में APSSB और अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन का जो एक मेंबर होना है बोला। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये जो है ये हम लोग का तो 2018 में जो है रिक्रूटमेंट
एडवर्टाइजमेंट हुआ था। तो कैसे जो है ये हम लोग का जो इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है वो गाइडलाइन जो ये अप्लाई होगा, हम लोग का तो 7 अक्टूबर 2021 को ही स्क्रूटिनी हो चुका था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसे लग रहा है कि हम लोग का जो है बाय हुक एंड क्रूक जो है हम लोग का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिले करवाने के लिए ये किया जा रहा है। आप लोग ही बताए कि एक रिक्रूटमेंट को आप 4 साल 5 साल जब लगाएगा, ये किसका इंटरेस्ट में है? ना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का इंटरेस्ट में है, ना डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट में है, ना स्पोर्ट पर्सन का इंटरेस्ट में है। अभी नया रूल आप नया उसमें अप्लाई करते जाएगा तो ये रिक्रूटमेंट तो आप कभी भी कंप्लीट होगा ही नहीं। हम लोग को तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन हिसाब से जो है वहाँ पे कुछ गाइडलाइन दे के रखा गया था। लेट मी कम टू दैट। यहाँ पे जो हम लोग कुछ पैरामीटर दिया था, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो है गाइडलाइन जो है मेरिट सिलेक्शन जो है कैसे होगा वो स्पोर्ट कोटा का जो है। तो यहाँ में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन लेटर वाइट 14034/1/1995 established dated 4 May 1995 forwarded by Government of Arunachal Pradesh Department of Personnel Administrative Reform and Training white letter OM number 13/2000 dated 14 May 2001। तो इसका हिसाब से जो है यहाँ पे जो है ये रिक्रूटमेंट को जो है इसमें जो है 41 जो है ये 41 जो है स्पोर्ट डिसिप्लिन जो है क्वालिफाई होता है ये एडवर्टाइजमेंट का अगेंस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो अभी सवाल ये होता है कि जिस समय में जो ये नोटिफिकेशन दे के रखा था उसके बाद जो है नया रूल आया, उसमें तो अभी स्टैंडिंग जो है 63 स्पोर्ट डिसिप्लिन है। तो क्या वो भी यहाँ अप्लाई होगा क्या? मैंने जब रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे स्पेसिफिक कट ऑफ डेट होता है, एप्लीकेशन रिसीव लास्ट डेट जो है हम लोग का 31 जुलाई 2018 तक था। तो क्या वो पैरामीटर को भी आप लोग चेंज करेगा क्या? तो इसके लिए हम लोग जो है बहुत दुख है। पता नहीं क्यों हम लोग का साथ में ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। कभी कभी नया रूल आता है फिर उसको ये करेगा बोलता है, ऐसे करके हम लोग 5 साल हो चुका है, 5 साल हो रहा है अभी। तो मैं यही अपील करूँगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी कि हमारा जो ये रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट जो है अभी फर्स्ट टाइम जो है ये रिक्रूट नहीं कर रहा है। अभी तक आप जो है एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ प्रोवाइडेड 392 जो है इंडिविजुअल्स को जो है स्पोर्ट कोटा में जो है नौकरी दिया, जिसमें जो है 259 जो है होम डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट रिक्रूट भी आपने किया। ये पहली बार नहीं है कि पुलिस ये रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो मुझे तो अभी यहाँ पर जो है एक ही डाउट होता है कि कहीं यहाँ पर बैकडोर एंट्री तो नहीं कराने का कोशिश तो नहीं हो रहा है, या पुलिस डिपार्टमेंट ये रिक्रूटमेंट को बिल्कुल ही करना नहीं चाह रहा है, या तो पुलिस वो डिपार्टमेंट में जो है जो बैठा इंसान जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इनकॉम्पिटेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट जब एडवर्टाइज होते समय जो है हम लोग का डीजीपी सर जो SBK सिंह था उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर RP उपाध्याय सर आए वो भी चले गए। अभी हमारे नए DGP जो है ये गोरचा सर है। तो कभी DGP नया है कहानी सुनाता है, कभी AIGP नया है, कब तक ऐसे चलेगा? और अगर टाइमली जो है हम लोग का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है ख़त्म किया जाता है बोलने से आज तक अभी जो है हम लोग अपना सर्विस दे रहे होते। और इसी बीच में जो बहुत सारा जो डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट चल रहा था, लाइक RWD में जो है 2019 को रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट हुआ था जय पोस्ट का, उसका भी कंप्लीट हो गया। फिर रिसेंटली जो है लास्ट 2021 में जो है APCS की तरफ से जो है फिर टेलीकॉम का जो है सब इंस्पेक्टर 13 पोस्ट निकला है। तो उसका भी रिसेंटली जो है ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और उनका जो है बाय 20 ऑफ दिस मंथ 22 ऑफ दिस मंथ जो है उन लोग का जो है मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद वाइवा वॉइस भी 27 को ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग के साथ में क्यों इतना इंसाफ़ी हो रहा है, ना इंसाफ किया जा रहा है? तो बाकी जो है मेरे ये बात
तो जैसे मेरे कलीग्स ने जो बताया है, जो ऑलमोस्ट पूरा ब्रीफ ही हो गया, तो हम ज़्यादा नहीं, एक दो पॉइंट्स को हम शेयर करेंगे। ये आप सबको अभी पता चल गया होगा कि ये एडवर्टाइज जो 18 को हो गया, टिल डेट अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मतलब 5 ईयर्स हो रहा है इसका। हाँ थोड़ा सा ठीक है। तो ये जिस हालत है, तो मतलब 5 ईयर्स हो रहा है, तो मतलब ये 5 ईयर्स कुछ मामूली बात नहीं होता है किसी का लाइफ के लिए, किसी का एज बार जो क्रॉस हो रहा होता है इसमें 5 ईयर्स के अंदर। तो गवर्नमेंट से हम लोग कितना बार जाके अपील किया, जितना हायर अथॉरिटी है सबको हम लोग ने अपील किया, लेटर लिखा, जितना हम लोग पॉसिबल है हम लोग कोशिश किया। तो रिगार्डिंग जैसे कि देखो सिंपल से एक है, जैसे जब ये लास्ट टाइम हम लोग जब PH को गया था 8 तारीख को, तो उसमें जैसे कि एक ऑर्डर जो निकला था, ये AR से जो ऑर्डर निकला था उसमें कि APCS से एक आना है, अगर ग्रुप A और ग्रुप B का होता है तो APCS से एक आएगा, अगर ग्रुप C और ग्रुप D आएगा तो APSS भी से एक मेंबर कंपलसरी आना है स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। तो वो लोगों ने क्या किया कि लेटर जो दिया APCS को, उसको दिया, कमीशन को दिया, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि हम लोग नहीं आए, मतलब हम लोग नहीं आएगा, हम लोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग नहीं आएगा, ऐसे रिप्लाई दिया उसको, जो अभी ये डिपार्टमेंट को जो रिप्लाई दिया कि नहीं आएगा। तो उसमें हम लोग बात करते समय हम लोग ये बोला है कि अभी ये कि देखो जो भी ऑर्डर निकलता है, कोई भी कुछ या एक जो भी कुछ निकलता है, वो तो जैसे जिस दिन से होगा, जिस दिन ऑर्डर निकला, जैसे कि 22 को निकला है तो 22 का जो डेट का उसके बाद जो फ्यूचर है उसमें अप्लाई होगा, तो ना बैक जाएगा, वो बैक डेट में तो नहीं होना चाहिए। तो वो लोग ने ये कहा कि इसमें ऐसा लिखा है कि ये एक APCS मेंबर होना है, जबकि हम लोग का तो 18 में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसमें हम लोग ऑलरेडी सब चीज़ फॉर्म सब चीज़ फिलअप हो चुका है, जितना प्रोसेस है सब कर चुका है, उसके बाद फिजिकल तक भी कर दिया। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आ रहा है तो कोई सी नहीं है कि रिजल्ट के समय में, अभी रिजल्ट के समय में वो रूल को क्यों अभी इंगेज कर रहे हैं हमें, ऐसा टाइप का हो गया। जैसे एक एग्जांपल देगा, सिंपल वे में एक एग्जांपल देगा, ऐसा टाइप का हो गया जैसे कि मान लीजिए कहीं एक एडवर्टाइज निकला, तो वहाँ क्वालिफिकेशन मांग रहा है क्लास 10 का, क्लास 10 का क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया, उसमें सब चीज़ जितना जो प्रोसेस होता है कर दिया, रिटन से सब चीज़ हो गया, लास्टली फाइनलाइज करना है, रिजल्ट निकलना है, सिर्फ रिजल्ट निकलना बाकी है। तो उसमें जाके वो लोग बोलेगा कि एक नया गाइडलाइंस आया है, अभी इसमें ये 10 पास नहीं 12 पास होगा, ये तो नहीं होगा ना नया कुछ डालने से। तो जब रिजल्ट का समय में आता है, जो पुराना रूल है उसमें तो चलेगा, नया जिसको अभी आप डालते रहेगा तो फ्यूचर में तो आते रहेगा, तो ऐसा मतलब होने से हम लोग का डिले होते रहेगा, एवरी टाइम डिले ही होते रहेगा हम लोग का। तो लास्ट टाइम जैसे कि होम मिनिस्टर सर ने बोला था कि सब चीज़ हो गया है, तो अभी सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करना है DG आने से। तो DG आने के बाद अगर जो हम लोग आ गया, DG को ये आने के बाद भी जब हम लोग गया तो हम लोग को नहीं लग रहा है कि ये विदिन ना समय में होगा, क्योंकि ये लोग फिर हम लोग को घुमा रहे हैं, फिर पेपर वर्क में ले जा रहे हैं, जबकि एश्योरेंस दिया था फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो हम लोग का डिमांड सिर्फ सिंपल वे है, सिर्फ सिंपल है, हम लोग किसी का मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग को फेवर करो, और ये नहीं बोल रहे कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने से क्या हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं है, किसी को भी मिल सकता है वो।